Okay, very good evening to all of you, beta. I'm going to today teach you mole concept. Okay, I'll be taking this lectures. I'll be putting in the group also whenever I'm going to take this extra class. Timing will be this only around 9:15 or 9:30. Today I'm going to teach you mole concept, and then beta, what I'm going to do, I'm going to teach you from exam point of view. Today, what all concept we are going to do, that I'm going to tell you. First concept today we are going to study is about atomic mass, RMM, okay, vapor density, molecular formula, empirical formula, and Avogadro number, and numerical based on them. So first thing, beta, atom we all know, beta, ये सब बहुत easy है, beta. Hydrogen, oxygen, all these are atom. Atomic mass is weight of an atom. Atomic mass we are not supposed to by heart. That is relative atomic mass, not supposed to by heart. They will give in exam. All these values will be given. Okay, like hydrogen, it is one, oxygen, this values will be given to you all. So no need to by heart, right? Then beta, next comes what? Molecule. When I say molecule, okay, so it is union of atom. Oxygen, hydrogen, nitrogen, chlorine. One more concept you should know, that is atomicity. What is atomicity? How many times that particular atom is present. So if I say hydrogen atomicity is 2, nitrogen is 2, okay, phosphorus is 4, S8 if I write, so this is the atomicity. Helium, neon, noble gases, they are monoatomic. Now, beta, whenever you do mole concept ka revision, we should always try to keep pen paper ready so that, important point you take down. Now, first thing they will ask you to how to calculate molecular mass. Okay. So whenever they ask you to calculate molecular mass, so they will give you the formula. Molecular mass whenever they, so like if I tell you find molecular RMM of carbon dioxide, they will give you this value, carbon and oxygen. So you should write the value of formula, molecular formula you should write, and you have to substitute. कार्बन कितना दिया है बेटा वो लोग ने? 12. ऑक्सीजन कितना दिया है? 16. So okay, so how many carbon? One carbon. How many oxygen? Two oxygen. So you have to write it, and these value you have to substitute here, and you will get the answer. You add them up. एक एकदम simple सा सब मैं तुमको बताता अभी. Now you tell me बेटा what you are going to do in this case. So if I tell you find molecular formula of ammonium sulfate, so you should know the formula of ammonium sulfate, or sometimes they may give also. And they will give you these values, beta. N का value 14 होता है, sulfur का 32, oxygen is 16, hydrogen is 1. So what you are supposed to do first, you have to calculate RMM, right? So we first write all the different element. Nitrogen है, hydrogen है, sulfur है और oxygen है. How many nitrogen is here? Whenever beta this square bracket is there, na beta, so this number will multiply. So it is 2 times. Hydrogen is 2 into 4, it is 8 times. Sulfur is 1, so it is 1 time, right? Oxygen is 4, so 4 times. That's it. And then you have to put the values. So 2 into 14 plus 8 into 1 plus 1 into 32 plus 4 into 16. And then you add them up. We'll get answer 132. Now, when the problem comes, beta, whenever they give any hydrated molecule, suppose मैंने आपको बोला blue vitriol is copper sulfate dot 5H2O. तो इसमें ये डॉट को देख के डरने का नहीं बेटा. दे विल गिव यू द वैल्यू ऑफ कॉपर एंड एवरीथिंग बेटा, राइट? कॉपर 64, वट एवर वैल्यू दे गिव दैट यू हैव टू सेलेक्ट. बेटा, वट एवर वैल्यू दे विल गिव दैट यू हैव टू सेलेक्ट. सल्फर इज 32, okay, oxygen is 16, hydrogen is how much? 1. Now in this case beta, what you are going to do, whenever you have to find RMM, तो देखने का राइट ऑल द डिफरेंट एलिमेंट. कॉपर इज 1, सल्फर कितना है? 1, ऑक्सीजन कितना है? 4 टाइम्स, राइट? हाई अभी नाउ ये डॉट वाला है ना बेटा, डॉट वाले को देख के डरने का नहीं. ये डॉट वाला जो रहता है ना बेटा, डॉट, इसको हम लोग को क्या करना है? 5 टाइम्स है तो 5 लिख दिया. अंदर हाइड्रोजन कितनी बार था बेटा? 2 टाइम्स. ऑक्सीजन कितना था? 1 टाइम, राइट? बस ये वैल्यूज अभी डाल दो. वैल्यू तो हमको पता है ना बेटा, दिस वैल्यूज दे विल बी गिविंग यू बेटा. तो यहाँ पे क्या डालोगे? 64, सल्फर इज 32. You just substitute the values.
right? And you will get the answer. So when you add them up, you will get बेटा 250. हो गया ये बेटा, ठीक है। RMM कैसे ढूंढने का आ गया। नाउ बेटा वी आर गोइंग टू गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, परसेंटेज। व्हाट यू आर गोइंग टू डू, पर देखो सल्फ्यूरिक एसिड बोला रहता तो हम लोग कैसे करते थे बेटा, याद आ रहा है कि नहीं। देखो सल्फर H एंड सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, ओके। अमोनियम सल्फेट जस्ट नाउ वी डिड ना बेटा, look, hydrated copper sulfate we did na right now only, right? Right now I did this, right beta, this dot water you have to add it up, right? Clear? Now beta they will ask you percentage. What is the percentage? Percentage का फॉर्मूला क्या है बेटा, एक कंपाउंड देगा उसका परसेंटेज बोलेगा। तो जो भी परसेंटेज, बट विच एवर एलिमेंट दे हैव गिवन, एटॉमिसिटी ऑफ दैट एलिमेंट इनटू atomic weight of that element upon RMM of compound, RMM of entire compound. Very simple, I'll give you beta. If they ask you, if they ask you find percentage of carbon and percentage of oxygen, percentage of carbon and percentage of oxygen in carbon dioxide, then how you are going to do it? तो पहले RMM ढूंढ लेने का कार्बन डाइऑक्साइड का, एटॉमिक वेट दे विल बी गिविंग बेटा। तो RMM क्या होगा, एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन है, ये डाल दो बेटा, 12 + 2 × 16, so you got 44. Now I want to apply the formula. Percentage of carbon is, how many times the carbon is given बेटा, कार्बन कितना टाइम है, how much it is, one time. So atomicity is 1 upon entire compound carbon dioxide into 100. अभी कार्बन का वेट कितना है 12, इसका कितना है 44 into 100, right? Now then you can calculate this. Percentage of oxygen पूछेगे तो oxygen is how many time बेटा in this, 2 times ना बेटा, so 2 into O upon entire carbon dioxide into what beta, 100, so 2 into 16 upon 44 into 100। बस बेटे ऐसे करने का बेटा, बहुत इजी है। मोल कॉन्सेप्ट में आज मैं तुमको देखना, एग्जाम में ऐसे ही सम आएंगे और मैं आपको बताता हूँ डिफिकल्ट वाले भी, बेसिक से मैं तुमको बता रहा हूँ बेटा। देन बेटा वन एग्जामिनर का एक फेवरेट क्वेश्चन कौन सा है पता है क्या, फाइंड परसेंटेज लॉस ऑफ वाटर। देखो बेटा अभी मैंने तुमको बताया था ना पूरा, देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला देखो आंसर के साथ पूरा आ गया बेटा, राइट। अभी आपको एग्जाम में क्या पूछेगा बेटा, फाइंड परसेंटेज लॉस ऑफ वाटर व्हेन ब्लू विट्रियल इज हीटेड। तो बेटा ये ब्लू विट्रियल था तुम्हारा, राइट। इसको हीट किया तो हमको क्या मिला, कॉपर सल्फेट। और ये वाटर कितना गायब हो गया, 5 वाटर। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड परसेंटेज ऑफ दिस वाटर। सो हाउ मेनी टाइम्स वाटर इज देयर, 5 टाइम्स वाटर अपॉन एंटायर कंपाउंड इनटू 100। नाउ जस्ट नाउ आई शोड यू नो हाउ टू कैलकुलेट फॉर द एंटायर कंपाउंड, राइट। अभी पानी कितना है बेटा इसमें, 5 टाइम्स। सो व्हाट विल बी माय परसेंटेज लॉस ऑफ वाटर, 5 इंटू वाटर अपॉन एंटायर कंपाउंड। तो 5 इंटू वाटर कितना था, 5 इंटू 18। तो देखो ऊपर 5 इंटू 18 आया, नीचे गया था 250, तो 90 अपॉन 250 हो गया बेटा। सो वन पार्ट आई हैव कवर्ड, how to find RMM and percentage composition done, right? Next part, they will ask you find gram atom. Gram atom का क्या formula है, what is the formula for gram atom? Okay, given mass of atom upon relative atomic mass, ये formula है बेटा, given mass of an atom upon relative atomic mass। अब इसमें सम कैसा आएगा बेटा, देखो चलो मैं तुमको सम बना के दे देता हूँ। फाइंड ग्राम एटम्स इन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और ब्रैकेट में वो लोग देंगे एक ऑक्सीजन का वेट 16 है। तो अभी अपना फॉर्मूला ये है ना ग्राम एटम का, ये फॉर्मूला में डालो चलो बेटा। तो ग्राम एटम इज इक्वल टू वॉट, गिवन मास ऑफ एटम। गिवन मास कितना दिया बेटा, 64 ग्राम दिया है कि नहीं, तो यहाँ पे मैं ऊपर क्या लिखूंगा 64 अपॉन एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन हाउ मच बेटा, 16। सो हाउ मच इज द आंसर बेटा, 4, राइट। कभी कभी उल्टा भी पूछेंगे बेटा आपको, दे विल गिव यू ग्राम एटम। सपोज इफ आई टेल यू बेटा आई विल चेंज द सम, ये आपको आया ना बेटा, ये फॉर्मूला याद रखना। सपोज इफ आई गिव यू, आई कैन चेंज द सम ऑल्सो बेटा। दिस हाउ आई कैन चेंज दिस, आई विल टेल यू फाइंड मास ऑफ ऑक्सीजन
इन 2 ग्राम एटम्स, इन 2 ग्राम एटम। तो अभी फॉर्मूला तो यही है ना बेटा, तभी यहाँ पे ये लोग ने आपको किसका वैल्यू दे दिया है, ग्राम एटम का वैल्यू दे दिया है, और आपको ये गिवन मास बोला है ढूंढने के लिए। और ब्रैकेट में वो लोग देंगे एक ऑक्सीजन इज 16, दिस विल बी गिवन टू यू। सो व्हाट यू विल डू बेटा, इंस्टेड ऑफ ग्राम एटम व्हाट वैल्यू विल सब्स्टिट्यूट, 2। गिवन मास यू डोंट नो, अपॉन एटॉमिक मास इज हाउ मच बेटा, 16। देयरफॉर व्हाट विल बी द गिवन मास, 2 into 16। हो गया। So what all type of question they can ask in exam on the basis of this formula? They will either tell you to find this and these two things will be given, or they will give you this and this given mass they will tell you to find out. Clear? Right? अभी जैसे ग्राम एटम था ना, उसके जगह पे मैं सिर्फ क्या करूंगा, ग्राम मॉलिक्यूल कर दूंगा, ग्राम मॉलिक्यूल। तो ग्राम मॉलिक्यूल में बेटा व्हाट इज द फॉर्मूला, इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मास हियर इट विल बी व्हाट, मॉलिक्यूलर मास, दैट्स इट। तो देखो इस पे कैसे समाएंगे, तो ग्राम एटम वाला अभी हम लोग ने किया था ना, देखो बेटा फाइंड नंबर ऑफ ग्राम एटम इन 8 ग्राम। चलो मैंने और एक सम बता दिया, 8 ग्राम में। तो ग्राम एटम इज गिवन मास अपन आर एम, हाउ मच इज द गिवन मास, गिवन 8। ओके, हाउ मच इज आर एम, गिवन 16, तो 0.5 ग्राम एटम। सिमिलरली दे विल आस्क फॉर ग्राम मॉलिक्यूल। ग्राम मॉलिक्यूल का फॉर्मूला कितना है बोलो बेटा, ग्राम मॉलिक्यूल इज व्हाट, ग्राम मॉलिक्यूल इज आस्क गिवन मास ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन आर एम एम, अपॉन आर एम एम। तो अभी देखो ये सम दिया, फाइन ग्राम मॉलिक्यूल इन 16 ग्राम। तो चलो बेटा क्या दिया इसमें, टेल मी व्हाट इज गिवन, दिस इज योर गिवन मास, यहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे बेटा, 16। ओके, आर एम एम कैन यू फाइंड ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कभी भी दिया रहेगा तो एक ओ नहीं होता है, नेचर में O2 होता है बेटा। मॉलिक्यूल बोले ना O2, सो हम O2O, तो 2 into 16, तो दैट इज 32। तो यहाँ पे नीचे हम लोग क्या डालेंगे इसके जगह पे, 32, राइट। तो विल गेट द आंसर और नॉट, टेल मी। सो लुक हियर, gram molecule given mass upon RMM. So given mass was how much beta, 16. RMM is how much beta, 2 into 16. So you got it or not, tell me. So look, I have done the concept of what beta, RMM कैसे ढूंढने का, परसेंटेज कंपोजिशन कैसे ढूंढने का, फिर ग्राम एटम एंड ग्राम मॉलिक्यूल। अब बेटा नेक्स्ट टाइप ऑफ सम आएगा, दैट इज वेपर डेंसिटी का। वेपर डेंसिटी में क्या होता है पहले आपको मैं बता देता हूँ, व्हाट इज, रिमेंबर बेटा, आर एम एम इज 2 into वेपर डेंसिटी, 2 into, इसमें एमसीक्यूज बहुत आते हैं, वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी मीन्स वीडी ऑल्सो वी कॉल इट। अभी बेटा मैं आपको ऐसा पूछूंगा, फाइंड आर एम एम ऑफ, ऐसा मैंने आपको बोला, आर एम एम ऑफ CO2 इफ इट्स वेपर डेंसिटी, इफ इट्स वेपर डेंसिटी इज, इफ इट, ऐसा पूछेगा बेटा, इफ इट्स वेपर डेंसिटी इज 22, ऐसा मैंने दे दिया है। तो अभी क्या है बेटा फॉर्मूला, आर एम एम और वेपर डेंसिटी वाला, आर एम एम इज 2 into वेपर डेंसिटी। तो आंसर क्या हो जाएगा बोलो बेटा, चलो आर एम एम इज 2 into वेपर डेंसिटी। इन एग्जाम दे हैव गिवन यू द वेपर डेंसिटी और नॉट, टेल मी। डाल दो यहाँ पर, तो मिल जाएगा ना बेटा। कभी कभी उल्टा भी पूछेगी आपको, आरएमएम देंगे और क्या बोलेंगे, वेपर डेंसिटी फाइंड करो। आरएमएम देंगे और क्या बोलेंगे बेटा, वेपर डेंसिटी फाइंड करो। तो अभी ये समय मैं आपके बोलूंगा यहाँ पे, ये सम को देखो मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है ना बेटा। अभी मैं तुमको क्या बोलूंगा बेटा, फाइंड वेपर डेंसिटी इफ आरएमएम इज 80। तो चलो फॉर्मूला क्या है, आरएमएम इज 2 into वेपर डेंसिटी, राइट। आरएमएम इज गिवन 80, so 2 into वेपर डेंसिटी, so therefore वेपर डेंसिटी will be what beta basically, so basically वेपर डेंसिटी is always half of RMM, तो 40। तो बेटा मैंने कितने कौन से कॉन्सेप्ट कर दिए, एक तो आर आर ये RMM कैसे ढूंढने का, फिर परसेंटेज कंपोजिशन, फिर ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, एंड नाउ वी डिड बेटा व्हाट, वेपर डेंसिटी, व्हाट वी डिड, वेपर डेंसिटी। क्लियर? ओके, इसके बाद में बेटा कॉन्सेप्ट आता है
molecular formula and empirical formula. What concept we are going to do? Molecular formula and empirical formula. Look, molecular formula MF and empirical formula EF. Now molecular formula beta, first we will do for benzene. देखो बेटा ये benzene होता है, benzene. How we write benzene? Benzene is, this is the structure of benzene ना बेटा. कार्बन कितना है अंदर? 6. हाइड्रोजन कितना है? 6. अब देखने का रेशियो लिखो इनका. ओके, तो आई विल जस्ट शो यू वन, so you'll get an idea clear. ओके, तो अभी मैंने आपको दिया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज बेंजीन वी आर डूइंग. ओके, सो दे हैव गिवन यू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6. तो क्या करने का, अलग अलग एलिमेंट कौन कौन है अंदर? कार्बन इज देयर एंड हाइड्रोजन इज देयर. टेक देयर रेशियो. कार्बन कितना टाइम था? 6 टाइम. हाइड्रोजन भी कितना टाइम है बेटा? 6 टाइम्स. So what ratio you'll get beta? 1:1. So what you are going to get? CH. So this is your empirical formula. So what, how we calculate an empirical formula? By taking the ratio. By taking the ratio of all the different element present in this. Right? तो चलो बेटा आ जाते हैं इधर पे. देखो बेटा, we did for benzene empirical formula, right? Now बेटा we will do for acetic acid. एसिटिक एसिड का फॉर्मूला बेटा ये दिया है. सी कितना है? सी 2 है. एच कितना है? 3 + 1 4. ओ इज हाउ मच? 2. सो लुक आई हैव रिटन दिस C2H4. अब लिखो हाउ मेनी डिफरेंट एलिमेंट आर देयर? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. कार्बन कितना है? 2. सो आई रोट 2. हाइड्रोजन कितना है? 4. सो आई रोट 4. ऑक्सीजन इज 2. सो रोट 2. अब ये कौन से टेबल में कट होगा सब? 2 1s are 2 2 2. बराबर है. तो C कितना मिला? 1. H कितना मिला? 2. O कितना मिला? 1. सो दिस इज योर एम्पेरिकल फॉर्मूला. लुक, CH2O. इजी. आई गिव यू बेटा ग्लूकोज. ग्लूकोज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6. कौन कौन अलग अलग एलिमेंट है? लिख दो. CHO. देखो बेटा CHO. C कितना है? 6. H कितना है? 12. O कितना है? 6. अब इसका रेशियो लेने का. ये देखो, क्लियर, इजी था ना बेटा? अब हो गया इसका. C कितना है? 1. तो CH2O1. लो. अच्छा, नाउ आई गो टू वाटर. वाटर में बेटा व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? H2O. तो H और O लिखना है. H कितना है? 2. O कितना है? 1. अभी यहाँ पे कोई कैंसिल होने वाला है क्या? नहीं ना बेटा. तो यहाँ पे तुम्हारा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो तुम्हारा एम्पेरिकल फॉर्मूला दोनों सेम होगा. तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑलवेज इट चेंजेस, इट कैन रिमेन सेम. हो गया. अब बेटा ना इसमें ना हम लोग को 3 फॉर्मूला है, वो मैं बताता. एक तो हम लोग ने पढ़ लिया RMM इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी. अब एग्जाम में आपको पूछेगा हाउ टू फाइंड एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. वेपर डेंसिटी और वो तो मैंने बता दिया ना बेटा. इसमें बेटा कभी देखो मैं आपको बताता ये फॉर्मूला भी कैसा है. लुक, टुडे वी डिड दिस ना बेटा. हम लोग ने अभी आपको ये एग्जांपल बताया कि नहीं बेटा? राइट, ऑल दिस एग्जांपल. अभी आप मेरे को बताओ. देखो ये मैंने आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी दे दिया था और एम्पेरिकल फॉर्मूला भी दे दिया था. राइट, देखो ये अपना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये तुम्हारा क्या एम्पेरिकल फॉर्मूला है. देखना बेंजीन का आज हम लोग ने किया था ना, C6H6 का CH आता था. एसिटिक एसिड का ये आ रहा था. ग्लूकोज का दिस वाज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दिस वाज एम्पेरिकल. वाटर का सोडियम दोनों नाइट्रेट। बोथ वेर सेम, राइट ना बेटा? अब मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? वाटर को ये वाटर में बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं? इसको इसमें लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा? 6. If I want to convert this into this, so I have to multiply by 2. If I want to convert CH into C, एब्रेटिव हाँ तो multiply by 6, right? सोडियम So डायग्राम करेंगे। basically, so basically what I have to do, so basically what I have to do बेटा, I have to multiply molecular formula को अगर empirical में convert करना है तो I have to multiply by certain number, so that certain number is always a whole number. Can you see? ये whole number है, fraction नहीं है बेटा. तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? n. So what is the what is the formula for molecular formula? Molecular formula is equal to n into empirical formula, where n can be this variable number, but they will be always whole number. Clear? अच्छा, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विल कम टू योर माइंड. सर हमको ये एन कैसे ढूंढने का? तो भी मैं बताता हूँ. देखो अभी ये फॉर्मूला याद रखने का. देखो अभी ये 4 फॉर्मूला वो याद रखने का. अभी हम लोग ने ये डिराइव किया कि नहीं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज एन इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला. अभी आप बोलोगे सर हाउ टू फाइंड दिस एन? तो एन का क्या फॉर्मूला है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एन? ओके, बस बेटा आई हैव डन बेसिक थिंग ओनली ना भैया, ओनली दिस परसेंटेज बस. ये मेन पार्ट अभी चालू है बेटा, ठीक है ना?
Okay, ठीक है, यस सर, थैंक यू। I'm recording also. I'll send the recorded video of this also. अभी n अपने को ढूंढना है, तो n का n, हाउ टू फाइंड n? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट, दैट इज RMM अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट. Then beta we have already done this. RMM is what beta? 2 into vapor density. अच्छा, अभी बेटा ये मॉलिक्यूलर वेट दैट इज RMM ना, तो RMM की जगह पे मैं ये डाल सकता हूँ कहने 2 into vapor density. So look, n will be what now? 2 into vapor density upon empirical weight. Okay, right? Now the numerical. What type of numerical they will ask? That I'm going to teach you. Okay. ये क्या हो गया इसमें? न्यूमेरिकल किधर गया मेरा? Look beta, what they will ask you to do. Look, find molecular formula of an organic compound containing percentage of carbon is 40, percentage of hydrogen is 6.66. अब बेटा टोटल ऐड, और वो लोग ने वेपर डेंसिटी भी दे दिया है, तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ढूंढना है. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का क्या फॉर्मूला था बोलो बेटा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला. तो फर्स्ट आई हैव टू फाइंड एम्पेरिकल फॉर्मूला और नॉट. एम्पेरिकल फॉर्मूला मुझे मिलेगा तो फिर मैं n ढूंढूंगा, राइट ना? बट बेटा फर्स्ट हाउ टू फाइंड एम्पेरिकल फॉर्मूला, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट यू हैव टू सी टोटल परसेंटेज. जो भी सम में परसेंटेज दिया, ये टोटल परसेंटेज को देखो. इज इट 100? ऐड करो दोनों को. 100 है क्या? नहीं है ना बेटा. 40 प्लस 6.66 करूंगा तो मुझे आई एम गोइंग टू गेट 46.66. सिंस इट इज नॉट कमिंग 100, देयरफॉर ऑक्सीजन इज प्रेजेंट. तो हम लोग परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन ढूंढेंगे. परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे ढूंढेंगे? 100 माइनस इन दोनों का परसेंटेज. ठीक है ना बेटा, इन दोनों का ऐड करने का. बाय डिफॉल्ट कभी भी अगर 100 नहीं होगा तो रिमेनिंग विल बी ऑक्सीजन. तो अभी हम लोग क्या करेंगे? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन ढूंढेंगे बेटा. देखो, टोटल परसेंटेज मैंने निकाला कार्बन और हाइड्रोजन का. आई गॉट दिस. 100 है क्या? नहीं ना, देयरफॉर ऑक्सीजन इज प्रेजेंट. 100 माइनस. अब इसके बाद बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, टेबल कैसे बनाने का. टेबल. ठीक है, तो देखो बेटा, टेबल मैंने यहाँ पे ऐसा बना हुआ है. पहले क्या लिखने का? एलिमेंट. फिर क्या लिखने का? परसेंटेज कंपोजिशन. तो एलिमेंट कौन कौन है अपने पास बोलो? कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन जो हमने ढूंढा. देन देयर परसेंटेज कंपोजिशन RAM दे विल गिव इन द सम. तो देखो बेटा, मैंने ऐसा टेबल बना दिया. देखो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. ऑक्सीजन वाज नॉट गिवन बट वी कैलकुलेटेड, राइट बेटा? ओके, चलो. इसका 40 था, इसका 6.6. अच्छा, एटॉमिक वेट कार्बन का कितना होता है? 12, इसका 1. अब क्या करते हैं बेटा, पता है क्या? दिस डिवाइड बाय दिस, 40 डिवाइड बाय दिस डिवाइड बाय दिस. वही लिखा है, उसको कहते हैं एटॉमिक रेशियो. एटॉमिक रेशियो इज व्हाट? परसेंटेज कंपोजिशन डिवाइड बाय RAM. परसेंटेज कंपोजिशन डिवाइडेड बाय RAM. तो मैंने 40/12 किया, दिस बाय दिस किया. अब बेटा देखो, ये इसका मेरे को आंसर आया यहाँ पे. व्हाट आंसर आई गॉट? 3.33, यहाँ पे 6.66, यहाँ पे 3. अब बेटा क्या करने का पता है क्या? ये जो नंबर है ना, ये पूरा नंबर एज इट इज यहाँ पे लिख देने का. देख रहे हैं? Now, which number is the smallest in among these three? Which is smallest? 3.33. क्या करने का बेटा? यहाँ पे जो भी आंसर आया ना हमको, ये इसको यहाँ पे रिपीट कर देने का, लिख लेने का. फिर इसमें से सबसे छोटा कौन सा है इन तीनों में? 3.33. तो सबको देख बेटा, 3.33 से डिवाइड करने का. देख रहा है बेटा? स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करने का. सपोज बेटा इफ, अरे यार, हाँ, इफ मुझे यहाँ पे 2.22 होता है बेटा, 2.22. तो ये सबसे छोटा ये होता है ना, तो मैं सबको किससे डिवाइड करता है? 2.2. हाँ, राइट. लेकिन यहाँ पे सबसे छोटा नंबर 3.33, तो मैंने सबको 3.33 से डिवाइड किया. नाउ व्हाट आंसर आई गॉट? 121. कभी कभी बेटा आपको ना, अभी दिस ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे याद रखना. सपोज समटाइम्स यू मे गेट आंसर 0.9, तो 0.9 को अप्रोक्सीमेटली 1 हम लोग लिख सकते हैं. समटाइम्स यू मे गेट आंसर 2.21, तो उसको अप्रोक्सीमेटली आई कैन टेक इट एज 2. आर यू गेटिंग इट? आई कैन गेट आंसर 0.8, तो उसको नियरेस्ट होल नंबर में लिखने का. अभी आप बोलोगे सर कितना तक हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं? टिल व्हाट नंबर आई कैन नेग्लेक्ट? यू कैन नेग्लेक्ट अप टू प्लस और माइनस 0.20.
लेकिन सपोज अगर आप बोलोगे सर अगर मुझे आंसर 2.5 आया तो, सपोज इफ यू गेट आंसर 2.5, तो बेटा यू कैन नॉट राइट 2.5 एज 3, यू कैन नॉट राइट इट एज 2, तो उसको नेक्स्ट नियरेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट करने का। सो इफ योर आंसर, इफ सर सपोज यू आर गेटिंग आंसर 2.5, तो विल मल्टीप्लाई दिस बाय 2, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना हो जाएगा 5, लेकिन आप एक को मल्टीप्लाई करोगे, यू हैव टू मल्टीप्लाई ऑल, यू हैव टू मल्टीप्लाई ऑल, बट यहाँ पे वो नौबत नहीं आ रही है। मैं अभी एक सम दूंगा करने के लिए, तुम लोग करोगे तो तुमको कॉन्फिडेंस आएगा बेटा। चलो ठीक है, तो अगर So, but how do we know that we are supposed to multiply it by 2? if हम 3 से करें तो फिर नहीं, 3 से कैसे करेगी बेटा, नियरेस्ट होल नंबर बेटा, 1.5, सपोज तेरे को आंसर 1.5 आया और 2 आया, तो तू भी क्या करेगी, इसी को 2 से मल्टीप्लाई करेगी ना बेटा, ये होल नंबर से ही मल्टीप्लाई करना होता है। तो 1.5 का ओके ठीक। 1 से करेगी तो 2 से करेगी तो 3 होगा ना ये, बट इसको तूने 2 से मल्टीप्लाई किया तो यू हैव टू मल्टीप्लाई ऑल बाय 2। आर यू गेटिंग इट? सपोज इफ यू पर गेट सर या अगर वैसे सपोज इफ आंसर यू गेट 1.3, 1.6 या 1.7 आया तो क्या करेंगे? किसका? 1.6 में तो 1.7 आंसर उतना आया तो क्या नहीं, करेंगे? 1.6 1.7 जनरली आता नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता, 1.3 आया तो क्या करेगी बेटा, 1.3 आया ना तो मल्टीप्लाई बाय 3 करना। क्यों पता है क्या? तो आपको आंसर कितना आएगा 3.9, एंड 3.9 को आप अप्रोक्सीमेटली 4 ले सकते हो। समझ में आया? क्लियर है? सो 1.6 1.7 को हम ये बोलता है नेक्स्ट टू टू में नहीं लिख सकते। नहीं, 1.7 को हम लोग जनरली नहीं लिख सकते, बिकॉज मैंने आपको क्या बोला था, प्लस और उतना नहीं आता है बेटा एग्जाम में आपको, है ना। या तो 1.5 या 1.4 आएगा, क्योंकि वी कैन नेग्लेक्ट ओनली अप टू 0.20। तो अगर 1.7 आता है तो विल मल्टीप्लाई दिस बाय 3, सो व्हाट आंसर यू विल गेट बेटा? बोलो, 3 से मल्टीप्लाई करेगी तो 5.1 आएगा ना, तो देन 5.1 को यू कैन टेक इट एज 5। आर यू गेटिंग इट? अब मैं एक सम दे रहा तुमको, उससे पहले ये वाला सम कंप्लीट कर लेते हैं, चलो। अभी बेटा हमारा ये हो गया ना बेटा, राइट? अभी देखो, अभी ये सी कितना आया बोलो बेटा, 1, तो देखो C1। एच कितना आया अपने को, बोलो हाउ मच एच आई गॉट, टेल मी। 2, C1, O1, तो देखो एम्पेरिकल फार्मूला हो गया, लेकिन अपने को एम्पेरिकल फार्मूला नहीं बोला है, अपने को मॉलिक्यूलर फार्मूला ढूंढना है। तो अभी मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए, या एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला का क्या फार्मूला था बोलो बेटा? मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए मुझे पहले एन ढूंढना पड़ेगा कि नहीं, तो एन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, RMM चाहिए अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला वेट। फ्रॉम वेयर आई विल गेट एम्पेरिकल फार्मूला वेट? फ्रॉम एम्पेरिकल फार्मूला आई कैन फाइंड एम्पेरिकल फार्मूला वेट। फ्रॉम वेयर आई विल गेट RMM? RMM नहीं दिया है, तो RMM का फार्मूला क्या है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, दे आर गिवन ना बेटा, वेपर डेंसिटी लुक हियर इन सम। वेपर डेंसिटी कितना दिया है बोलो बेटा, 30। तो अभी एम्पेरिकल फार्मूला से मैं क्या ढूंढूंगा बोलो बेटा, एम्पेरिकल वेट। देख मेरे को एम्पेरिकल फार्मूला दिया है ना, तो कैन आई फाइंड एम्पेरिकल वेट? कार्बन कितना है बोलो अंदर, 1, H is 2, O is 1, so I got empirical weight. Now I have to find molecular weight. Molecular weight का फॉर्मूला क्या था, 2 into vapor density. How much vapor density was given? 30। क्लियर? तो देखो, अभी मेरे को मॉलिकुलर वेट भी मिल गया, एम्पेरिकल वेट भी। कैन आई कैलकुलेट नाउ एन? एन का फॉर्मूला क्या है, मॉलिकुलर वेट अपॉन एम्पेरिकल वेट, सो 60 अपॉन 30, सो हाउ मच आई विल गेट 2। एन का वैल्यू मिल गया, नाउ आई कैन फाइंड मॉलिकुलर फॉर्मूला, एन इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। एन का वैल्यू कितना आया मुझे बोलो बेटा, 2, तो 2 इंटू C2, 2 इंटू H2, 4, 2 इंटू O2 आ गया कि नहीं? अब देखो बेटा, मैं तुमको एक है ना पेपर में का सम बोलता हूँ, और वो करो, तुम लोग मेरे साथ में ही करो बेटा, आएगा बेटा। सम करोगे ना तो बेटा योर कॉन्फिडेंस विल ग्रो हाई। सॉरी। हम्म। चलो बेटा, आई एम गोइंग टू डू वन सम। आज अभी मैंने तुमको दो सम कराया था ना, वो दोनों पहला दोनों कॉन्सेप्ट में तुमको यूज करवा के बताता हूँ बेटा, चलो।
देखो बेटा, आज अपने को, आज मैंने आपको जो करा था ना, देखा एग्जाम में ऐसा सम आएगा। फाइंड एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। देखो आपको ये स्ट्रक्चर दिया था ना, अभी मैंने बताया था, तो सी कितना है इसमें बेटा, सी 6 है। एच कितना है, 1 2 3 4 5 6। अब इसका रेशियो ले लो बेटा, 6:1:1, तो कितना हो जाएगा, 1 CnH1। तो आंसर क्या होगा, CH। अब समझ में आया कैसा सम आता है, राइट। फिर अभी ये परसेंटेज वाला सम मैं तुमको बताता हूँ, ठीक है ना। अभी देख, अभी ये वाला सम आया, देखो MCQ में आया कि नहीं, क्या आया बोलो बेटा। वेपर डेंसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज, तो वेपर, अच्छा तो वेपर, अच्छा RMM इज हाउ मच बेटा, 2 × वेपर डेंसिटी। तो आपको RMM कार्बन डाइऑक्साइड का मिल जाएगा, इससे कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 होता है, तो 12 + 2 × 16, तो ये 44 हो गया कि नहीं। 44 इज इक्वल टू 2 × वेपर डेंसिटी, देयरफॉर वेपर डेंसिटी विल बी हाउ मच, 44/2। तो 22 इज योर आंसर। ये देखो आया कि नहीं। अब समझ में आ रहा है कैसे करने का सम्स, मैं देखो पेपर में से ही बता रहा हूँ तुमको नाउ। ये देखो और एक सम आया था बेटा, किधर गया, ये रहा। नहीं नहीं, परसेंटेज वाला मुझे बताना। हाँ हाँ, लुक हियर, कैन यू सी दिस सम बेटा। हाइड्रोकार, अच्छा यहाँ पे क्या लिखा है, हाइड्रोकार्बन। नाविया हाइड्रोकार्बन मीन्स इट विल हैव ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन, ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन। अच्छा, हाउ मच परसेंटेज ऑफ कार्बन दे हैव गिवन, 82 पॉइंट। बाकी किसका परसेंटेज दिया है, तो कार्बन का दे दिया है बेटा, बट हाइड्रोजन का नहीं दिया। एंड दे हैव टोल्ड हाइड्रोकार्बन, सो इट इज मेड अप ऑफ ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन, सो कार्बन इज दिस मच, सो हाउ मच विल बी हाइड्रोजन। अरे बोलो, हाइड्रोजन के लिए क्या करेंगे, 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो 100 माइनस 82.76, तो आपको परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन मिल जाएगा। एंड व्हाट दे हैव टोल्ड अस टू कैलकुलेट, एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड वेपर डेंसिटी इज गिवन। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज ऑफ हाइड, इसमें ऑक्सीजन नहीं है हाँ बेटा, याद रखना, क्योंकि हाइड्रोकार्बन बोला है ना बेटा, ठीक है ना। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला रहता तो फिर वो लोग 2 का परसेंटेज देते, फिर ऑक्सीजन का नहीं। यहाँ पे अगर कार्बन का दिया तो हाइड्रोजन का नहीं दिया होगा। तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, चलो बेटा, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन मैं तुमको पूरा बताता हूँ। देखो बेटा, पहले हम लोगों ने परसेंटेज ऑफ कार्बन वाज गिवन 82.76, राइट। हाइड्रोजन इज 100, अब हाइड्रोजन का मिलेगा ना 100 माइनस दिस। फिर कार्बन लिखा हम लोग ने, कार्बन का कितना परसेंटेज है बोलो, सेम वे हम लोग ने किया बेटा, कार्बन का 82 में, हाइड्रोजन का कितना मिला, इसका एटॉमिक, तो नाउ दिस डिवाइड बाय दिस, ये देखो मैंने यही किया ना बेटा, दिस डिवाइड बाय दिस, एटॉमिक रेशियो निकाला। देख मैंने ये सॉल्व किया, मुझे 6.90 आया, इसको 17.24 आया। फिर ये दोनों, ये एज इट इज यहाँ पे लिखा, ये एज इट इज यहाँ पे लिखा। फिर इन दोनों में सबसे छोटा कौन है, 6.9, तो देखो दोनों को 6.9 से मैंने डिवाइड किया। देख जब मैंने डिवाइड किया तो मुझे यहाँ पे 1 आया और यहाँ पे 2.5 आया। अभी मैं क्या करूंगा, देखिए 2.5 आया तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो बेटा ऊपर वाले को भी 2 से करने का, तो देखो 2 हो गया है, तो सी कितना हो गया तुम्हारा बोलो बेटा, 2। एच कितना हो गया बेटा, 5, तो C2H5। एम्पेरिकल फॉर्मूला मिल गया, सम खत्म नहीं हुआ है, हमको एम्पेरिकल फॉर्मूला मिल गया। अब मैं एम्पेरिकल वेट निकालूंगा, व्हाट इज एम्पेरिकल वेट, ये देखना बेटा, ये मिल गया एम्पेरिकल वेट। और मॉलिकुलर वेट कैसे मिलेगा, 2 × वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी वॉज गिवन 29, तो अभी मेरे को मॉलिकुलर वेट भी मिल गया, वेपर डेंसिटी भी मिल गया, ठीक है ना। अभी मेरे को एन ढूंढना है, एन का फॉर्मूला क्या था बोलो बेटा, मॉलिकुलर वेट अपॉन एम्पेरिकल वेट, मॉलिकुलर वेट इज 58, एम्पेरिकल वेट इज 29, 58/29, सो एन विल बी हाउ मच, 2। अब एन मिल गया तो मॉलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एन इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। एन का वैल्यू कितना है, 2। एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना था बोलो बेटा, C2H5। सो 2 × C2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, C4। 2 × 5 करेंगे तो H10 हो गया। अब आप, विल यू बी एबल टू डू एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला सम, टेल मी। हेलो, हेलो ऑल ऑफ यू, आर यू गेटिंग इट, टेल Yes, मी। sir. Okay, Yes. Yes, very good. Now, beta, I'm going to teach you. Look, so for today, what all concept we did, beta, total concept, I'll write first. और देखो मैं पेपर में से भी करा रहा, फर्स्ट वी डिड RAM, देन वी डिड RMM, देन वी डिड परसेंटेज, देन वी डिड ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, देन वेपर डेंसिटी, देन वी डिड मॉलिकुलर फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब हम लोग करेंगे बेटा एवोगैड्रो वाला।
ठीक है, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर, या बेटा अगर मैं बोलता हूँ 1 डजन पेन, 1 डजन मतलब 1 डजन पेंसिल मीन्स 12 पेंसिल, 1 डजन बनाना मीन्स 12। तो जैसे मैं आपको डजन बोलता हूँ तो आपके दिमाग में एक व्हाट विल कम टू इन योर माइंड, 12। So similarly, if I say Avogadro number, then if I say Avogadro number of pencil means how many pencil? This much pencil or pen. Avogadro number of banana means how many banana? 6.023 into 10 raised to 23. Means like dozen represent 12. The same way, Avogadro number represents 6.023 into 10 raised to 23. Now, this is the standard relation. Look now, be careful. ये पार्ट दिमाग में डाल दो बस बेटा, देखो। इफ आई गिव 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, तो 1 मोल उसका आप वेट करोगे ना, वे, इफ यू पुट इट ऑन वेइंग पेन, तो हाउ मच इट विल वे? इट विल वे करस्पॉन्ड टू इट्स मॉलिक्यूलर वेट, इफ मॉलिक्यूल इज गिवन। अकेला एटम होगा तो एटॉमिक वेट होगा, बट मॉलिक्यूलर वेट ही ज्यादा होता है। अच्छा, फिर इफ आप काउंट करोगे आपको उसके अंदर कितने पार्टिकल्स नजर आएंगे? 6.023 इंटू 10 रेज टू 23। मैंने आपको 1 मोल पेन दिया तो आपने वेट किया, फिर आप 1 मोल पेन के अंदर काउंट करोगे तो कितने पेन नजर आएंगे? हाउ मच पेन यू विल सी? 6.023 इंटू 10 रेज टू 23। इफ यू पुट ऑल दिस पार्टिकल्स इंटू वन बॉटल, प्रोवाइडेड दिस शुड बी गैस, तो हाउ मच वॉल्यूम इट विल ऑक्यूपाई? 22.4 liters at STP. Or if I convert that into centimeter cube, then it will be 22,400 centimeter cube. I'll give you one example, बेटा। look, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, ये देखो ये वाला। अगर मैंने आपको 1 मोल हाइड्रोजन दिया, 1 मोल हाइड्रोजन H2, तो उसका आप वेइंग पेन पे डालोगे तो हाउ मच इट विल वे? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इफ यू पुट, हाउ मच इट विल वे? इट्स मास, मॉलिक्यूलर मास, तो कितना मास है उसका बोलो? 2 into H, एक H का 1 तो 2 ग्राम। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आप वेइंग पेन पे डालोगे तो इट विल वे 2 ग्राम्स। फिर आपको मैंने 1 मोल हाइड्रोजन दिया या 2 ग्राम हाइड्रोजन दिया, तो आप उसके अंदर काउंट करोगे तो आपको कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स नजर आएंगे? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स 6.023 इंटू 10 रेज टू 23 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। लेकिन अच्छा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर एटम कितना है? 2 है ना बेटा। तो व्हाट आई विल डू बेटा, दिस थिंग मल्टीप्लाई बाय 2, बट हियर इट इज हाइड्रोजन एटम। ठीक है। अच्छा, मैं सपोज बेटा मैं पूरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हूं, लेकिन मेरे अंदर हाथ कितने हैं? 2। तो मेरे हाथ कितने हो जाएंगे बेटा? 2 ना, तो इसलिए मेरे को 2 से मल्टीप्लाई किया। दिस इज फॉर एटम। ठीक है। नाउ, इतने सारे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को अगर मैं कंटेनर में भरूंगा तो हाउ मच वॉल्यूम इट विल ऑक्यूपाई? हाउ मच वॉल्यूम इट विल ऑक्यूपाई? 22.4 liters। इट विल ऑक्यूपाई हाउ मच बेटा? 22.4 liters। अच्छा, इन एग्जाम बेटा देर आर 4 थिंग्स इन दिस, इफ यू सी हियर बेटा, मोल है एक, देन दिस इज व्हाट बेटा? मास। दिस इज नंबर, और ये क्या है बेटा? वॉल्यूम। अभी आपको सम में क्या पूछेंगे? दे विल गिव यू मोल और मास के बारे में पूछेंगे, और मोल और नंबर, और मोल और वॉल्यूम। देन नेक्स्ट दे विल आस्क यू अबाउट mass and number, then they may ask you about mass and volume। लास्ट सम कैसा आएगा बेटा? दे विल आस्क यू बिटवीन नंबर एंड वॉल्यूम। बस इतना ही पूछेंगे। सम करते, एक छोटा सा सम आपको बताता हूं, ठीक है। हाँ, और एक एग्जांपल बता देता। सपोज बेटा मैंने बोला रहता 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो चलो बेटा 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। 10-15 तक क्लास है बेटा, 10-15, ओके। 1 hour ओनली क्लास, ओके। 1 मोल ऑफ CO2, तो विल करस्पॉन्ड टू मॉलिक्यूलर वेट, तो कितना एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, तो 44। मैंने आपको 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड किया, तो आप वे करोगे तो कितना मिलेगा? 44 ग्राम। अच्छा, उसके अंदर कितने कार्बन डाइऑक्साइड हो गए बेटा? 6.023 इंटू 10 रेज टू, अच्छा कार्बन कितना? एक ही है ना, तो 1 into 6 दैट इज कार्बन एटम। ऑक्सीजन कितना है? 2, तो 2 into 6.02 ऑक्सीजन एटम। अच्छा, इफ यू पुट ऑल दिस इनटू कंटेनर, हाउ मच वॉल्यूम इट विल ऑक्यूपाई एट STP? 22.4 dm3। हाउ मच इट विल ऑक्यूपाई? 22.4 dm3। अब आप बोलोगे सर सम कैसे आएंगे?
तो सब मैं बता देता हूँ। ओके, चलो बेटा, पहला सम मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ बेटा। ठीक है, लेट अस डू द सम फर्स्ट। देखो बेटा, व्हाट इज गिवन इन दिस सम। फाइंड मोल्स, तो आपको क्या पूछा है, मोल्स इन 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो ग्राम में बेटा हम लोग देखो क्या, दो चीज आपको पता चल गई, एक तो मोल ढूंढना है और एक ग्राम में हम लोग क्या मेजर करते हैं, मास। तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, विच रिलेशन वी विल यूज, मोल एंड मास। हमारा 4 रिलेशन था ना, मोल, मास, पार्टिकल्स, वॉल्यूम, राइट। तो मास, तो 1 मोल होता तो क्या होता बेटा, RMM होता कि नहीं, RMM ऑफ हाइड्रोजन। हाउ मच हाइड्रोजन इज गिवन बेटा यार, हाइड्रोजन का एक का वेट 1 दिया है। ओके, तो हाइड्रोजन कितना होगा बेटा, RMM 2 × H, सो 2 × 1, सो 2 ग्राम। 1 मोल होता तो कितना होता था, 2 ग्राम। अभी कितना ग्राम दिया बेटा वो लोग ने, हाउ मच ग्राम दे वास्ट। इफ इट इज 4 ग्राम देन हाउ मेनी मोल्स, क्रॉस मल्टीप्लाई, इजी। तो देखो बेटा ऐसा करने का, देखो 1 मोल 2 ग्राम एंड हाउ मच दे हैव गिवन 4 ग्राम, सो हाउ मच, कितना इजी है, राइट। सपोज बेटा मैं तुमको यहाँ पे एक सम दे देता बेटा, फाइन। लेकिन बेटा याद रखना, हाइड्रोजन H2 होगा, गैस होगा तो डायरेक्ट में, ऐसा मैंने तुमको बोला। चलो बेटा, फाइंड मोल्स इन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ऐसा मैंने पूछ लिया, ऑक्सीजन। और आपको ब्रैकेट में मैं वो का वेट लूंगा, तो आपको पहला देखने का मोल है और ये मास दिया, तो मैं सेम रिलेशन यूज करूंगा, मोल एंड मास। अच्छा बच्चे लोग, ऑक्सीजन लिखा है तो 1 मोल होता तो कितना मास होता, 1 मोल होगा तो बेटा RMM ना बेटा, RMM। ऑक्सीजन कैसा होता है नेचर में, O2, तो 2 × O, सो 2 × 16, दैट इज हाउ मच बेटा, 32। 1 मोल होता तो 32 होता, अभी वो लोग ने कितना पूछा है, 64 ग्राम होगा तो कितना मोल, राइट। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 मोल्स। इजी, बहुत इजी है बेटा ये, खाली आप ध्यान रखना। So, यस, so when we say hydrogen, are we supposed to take it as H2 or H? H2। अच्छा टेल मी बेटा, इन नेचर हाइड्रोजन विल बी H2, ऑक्सीजन विल बी O2, इफ दे गिव नाइट्रोजन देन यू हैव टू टेक इट N2, राइट। क्लोरीन देन Cl2, हाइड्रोजन हाउ इट तो एक्सिस्ट, एटम में आएगा यस, वही और ठीक है. गैस, वी आर स्टडिंग गैस, गैस आर ऑलवेज डायटोमिक। ओनली नोबल गैस होगा ना हीलियम, दैट विल बी मोनोएटॉमिक, उनको एक ही बार लेना है, हीलियम नियोन को। क्लियर, Yes, sir. ओके। नाउ लुक हियर बेटा, वन मोर सम आई हैव गिवन यू हियर। चलो बेटा, ये वाले सम में देखो क्या दिया है, फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है और क्या दिया है, मोल। तो एक तरफ में क्या लिखूंगा, मोल, और मॉलिक्यूल्स ढूंढना है मतलब पार्टिकल। तो 1 मोल होता है तो कितना पार्टिकल्स होता है, 6.023 इंटू 10⁻23। हाउ मेनी मोल्स दे हैव टोल्ड, 2 मोल्स, तो 2 मोल्स होगा तो कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई, गॉट इट। तो देखो ये आंसर होगा। चलो अभी हम लोग एक वॉल्यूम वाला लेंगे बेटा, देखो क्या लिखा है, फाइन वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा ग्राम मतलब आपके दिमाग में आ गया ना, मास, और ये क्या पूछा है, वॉल्यूम। तो आपको पता है RMM होगा ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो कितना वॉल्यूम होगा, 22.4 लीटर्स। RMM हम कितना होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, आप ढूंढ सकोगे ना, कार्बन 1 है ऑक्सीजन 2 है, तो ये आप सॉल्व करोगे तो आपको कितना आएगा, 44 ग्राम। 44 ग्राम होता तो 22.4, अभी पूछा कितना है, 22 ग्राम, तो 22 ग्राम होगा तो कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई, राइट। सो लुक हियर बेटा, तो लोग मास एंड वॉल्यूम वाज गिवन ना, देखो ये सब में समझ में आया ना, ग्राम मतलब मास है और वॉल्यूम पूछा है, तो मॉलिक्यूलर वेट होता तो इतना, मतलब 44 होता तो 22.4, 22 होगा तो कितना, क्लियर। अभी देख यहाँ पे क्या पूछा है बेटा, फाइन
वॉल्यूम, फाइंड व्हाट बेटा, वॉल्यूम। और ये क्या दिया बेटा, पार्टिकल्स। तो कौन सा रिलेशन यूज करेंगे बेटा, पार्टिकल्स एंड वॉल्यूम, राइट ना। आपको पता है 6.023 इंटू 10⁻23 होता, तो 22.4 लीटर होता। अब इतना दिया है, 12.046 इंटू 10⁻23, सो हाउ मच, इजी, राइट। देखो बेटा, अभी आप बोलोगे सर एग्जाम में सम कैसे आएंगे इस पे, तो मैं बताता हूँ, देखो। ओके, चलो बेटा। अभी देखो ये वाला पहला ही सम देखो बेटा, बहुत अच्छा सम है बेटा, जो भी देगा। ऐसे ये एमसीक्यू है बेटा, विच ऑफ द किसका वेट सबसे ज्यादा होगा। पहले क्या लिखा है, 2 ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, क्या लिखा है, 2 ग्राम एटम्स। ठीक है ना बेटा, तो कैसे करेंगे, राइट। चलो, 2 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, ग्राम एटम का क्या फॉर्मूला था, वी हैव स्टडीड ना बेटा, ग्राम एटम इजिकल टू गिवन मास। गिवन मास हमको नहीं दिया, इसमें ग्राम एटम दे दिया, मैंने बोला था ना, अपॉन एटॉमिक मास, अपॉन एटॉमिक मास। एटॉमिक मास वो लोग ने दिया है बेटा, ये देखना ऑक्सीजन का दिया है 60। ग्राम एटम कितना दिया है, 2 ग्राम एटम, तो ये ग्राम एटम की जगह पे मैं क्या डालूंगा, 2। गिवन मास वी डोंट नो, एटॉमिक मास इज हाउ मच बेटा, 16। देयरफॉर व्हाट विल बी माय गिवन मास, 2 इंटू 16, तो कितना आएगा, 32। तो ये इसका आंसर कितना आएगा, इसका वेट कितना होगा, 32। इसमें कितना मोल पूछा है, 2 मोल्स ऑफ NaOH। ठीक है ना, 2 मोल्स ऑफ NaOH। ए 1 मोल ऑफ NaOH कितना होता, बोलो बेटा, मोल लिखा और मोल दिया है ना बेटा, मोल, और क्या पूछा है, वेट, मास। मोल और मास याद आ रहा है कि नहीं बेटा, 1 मोल होता तो कितना वेट होता NaOH का, Na O और H ऐड कर दो, Na का वेट दिया है वो लोगों ने, देखो 23 ONH। तो 23 + 16 + 1 तो कितना होता है ये, 40। लेकिन वो लोगों ने पूछा कितना है, 2 मोल्स, तो 2 मोल्स होगा तो कितना, तो आपको कितना आएगा इसका, 80 ग्राम्स। तो देखो इसका 80 आ गया आंसर। अब क्या पूछा है, 5.6 लीटर्स, ए लीटर्स मतलब वॉल्यूम है, और पूछा क्या है, मास। तो मैं कौन सा रिलेशन यूज करूंगा, मास एंड वॉल्यूम, राइट। मास एंड वॉल्यूम करूंगा कि नहीं, बोलो बेटा, राइट। ओके। तो अच्छा मेरे को बताओ, RMM ऑफ CO2, RMM होता तो कितना वॉल्यूम होता, बोलो बेटा, 22.4 लीटर होता। RMM CO2 का कितना होता है, बोलो बेटा, CO2 का 44 ग्राम होता है। 44 ग्राम होता तो 22.4 लीटर होता। अभी वो लोग ने दिया कितना है, सिर्फ 5.6 लीटर होगा तो कितना, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 11 ग्राम। तो इसका आंसर कितना आएगा आपको, 11, राइट। और ये क्या पूछा है, 6.023 इंटू 10⁻20 एटम्स ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे बेटा क्या है, नंबर दिया है। और क्या पूछा है आपको, मास। तो मैं कौन सा रिलेशन यूज करूंगा, मास एंड नंबर। तो बेटा अभी इसमें अकेला एटम दिया तो मैं एटॉमिक मास लूंगा, तो एक कार्बन होता तो कितना नंबर होता था, बोलो, मतलब मास ऑफ कार्बन इज हाउ मच बेटा, 12 ग्राम्स, पता है ना बेटा। तो 12 ग्राम्स होगा तो कितना पार्टिकल होता था, 6.023 इंटू 10⁻23 होता। अभी वो लोग ने पूछा कितना है, 10⁻20। तो 6.023 इंटू 10⁻20 होगा तो कितना, तो देखना बेटा ऑलमोस्ट ये कितना हो रहा है, डिवाइड बाय 1000 हो रहा है ना, तो आंसर कितना आता है, 0.012। तो इन तीनों में किसका सबसे ज्यादा वेट है, ये 80। तो आपका आंसर क्या होता है, 2 मोल्स ऑफ NaOH, राइट। अब देखो बेटा ये वाला सम, ये देखो ये वाला सम पूछा था, बहुत इजी है बेटा ये। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस। लुक बेटा ये गैस दिया है 7 ग्राम, तो मास दिया और वॉल्यूम, तो व्हाट रिलेशन आई राइट यार, मास एंड वॉल्यूम। तो RMM ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कैसा होता है नेचर में, N2। तो वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर्स। तो नाइट्रोजन N2 मतलब 2, एक नाइट्रोजन का वेट दिया है वो लोग ने, देख 14, सो 2 इंटू 14 दैट इज
28 ग्राम होता तो 22.4 लीटर होता। वो लोग ने पूछा कितना है, 7 ग्राम। तो 7 ग्राम होगा तो कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई तो डिवाइड बाय 4 है ना, ये 4 टाइम हुआ कि नहीं, तो आंसर क्या आएगा, 5.6। क्लियर, राइट। तो ऐसे बेटा सम्स आते हैं बेटा, देखो ये वो तुम्हारा पेपर का ही क्वेश्चन मैं सब बता रहा हूँ। लास्ट सम फॉर टुडे, ठीक है, देन वी विल एंड द क्लास। कल अगर होगा ना बेटा तो मैं कल रिवाइज कराऊंगा तुम लोगों को बेटा, गेल-लुसैक्स लॉ। हाँ, ऐसे ही सम भी करेंगे बेटा पूरा। एक इसमें से सम मेरे को भी कराने दो, कौन सा था बेटा, ये इसमें था शायद। हाँ ये रहा। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1.4 ग्राम ऑफ इथीन। तो देखिए मास दिया और इथीन गैस दिया। इथीन गैस का फॉर्मूला क्या होता है, C2H4। समझ में आ गया ना। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, मोल्स भी ढूंढने का है, मास भी ढूंढने का है, मॉलिक्यूल्स भी ढूंढने का, मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है बेटा। तो चलो बेटा पहले आरएमएम ऑफ इथीन हम लोग ढूंढेंगे। आरएमएम कितना है, 26 ग्राम। फिर एवोगैड्रो लॉ, 1 मोल होता तो कितना होता, 26 ग्राम। 28 होता है, सॉरी। अरे यार 4 to 8 28 होगा ना बेटा। ठीक है ना बेटा, 1 मोल होता तो 28 होता। तो अभी वो लोग ने कितना पूछा है, 1.4 ग्राम। तो 1.4 ग्राम होगा तो क्या होगा बेटा, 1 मोल वॉज 28। तो 1.4 विल बी हाउ मच, आ जाएगा आंसर बेटा। क्लियर है, 1.4 डिवाइड बाई 28, बराबर है। क्लियर। तो 1 बाय कितना हो जाएगा तुम्हारा, 2, दैट इज 0.05। दैट विल बी द आंसर। क्लियर। ये 10 था ना बेटा, ये 0.1/2 था। ओके, इजी, राइट। तो ऐसे सम्स आएंगे बेटा, तो जरा भी ऐसा मोल्स और मॉलिक्यूल का तो कर पाओगे, राइट ना। हेलो, आर यू ऑल गेटिंग। देखो अभी मैंने सम भी तुमको करा दिए इसके, कैसे सम आएंगे, राइट ना। So you'll be taking the class during this time only, right? Tomorrow. हाँ हाँ, मोस्टली यही टाइम पे होगा। मैं डालूंगा बेटा, आई विल पुट एवरी डे इन द ग्रुप, इन द इन द आफ्टरनून आई विल पुट अप। देखिए बेटा ये वाला देख, परसेंटेज लॉस ऑफ वाटर पूछा था। इंस्टेड ऑफ कॉपर सल्फेट लोगों ने क्या लिखा था, मैग्नीशियम नाइट्रेट .6H2O। तो .6H2O का आपको ढूंढने का था बेटा, राइट। तो ये देखो बेटा, मैग्नीशियम नाइट्रेट का हम लोग पूरा ही ढूंढ सकते कि नहीं पहले। ये देखो, आरएमएम ढूंढा मैग्नीशियम नाइट्रेट का, 256 आया। उसमें पानी कितनी बार है, 6 बार। तो 6 वाटर अपॉन पूरा, वाटर का कितना होता है 18, 6 × 18 अपॉन 256 × 100। दिस इज योर आंसर। टुमारो आई विल ट्राई बेटा, मैं आई जस्ट सी माई स्केड्यूल, बट टुमारो आई विल डू गेलुसेक्स। ओके, चलो देन, बाय बाय एवरीबॉडी, गुड नाइट। Thank you. Bye. Good night. Bye, sir. Bye, sir. Thank you. Bye, sir. Thank you, sir.